मैं कहना चाहांगा कि लगभग पिछले ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਭਗ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, पंचायत की कारगुजारी तो खुश हो के। ईटीटी टीचर हूँ, मेरी पोस्टिंग है जीपीएस ठसका और मैं सबसे पहली महिला हूँ इस गांव की जो सरकारी जॉब में आई हूँ। गांव में जो शायद सबसे पहले सरकारी जॉब लगी थी वो जो थे एक टीचर ही थे, तो उनसे आगे आगे प्रेरणा लेकर टीचर आगे टीचर बनते गए। हम एक देश का एक भविष्य बना रहे हैं, तो इससे प्रेरित होकर आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं टीचिंग की तरफ जा रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵਸਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਗੁਲਾੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। तकरीबन सर होने 300 मुलाजिम होने मेरे गांव में। टीचर हैं 150 के आसपास, तो और बाकी कोई आर्मी में भी हैं 100 के आसपास लड़के, बड़े और भी हैं। एसडीओ लगे हैं 2 लड़के, 2 साल पिछले 2 साल से सर्विस कर रहे हैं। और वेटरनरी भी है, डॉक्टर भी है, और साथ में अपने दांतों के दंत चिकित्सक भी हैं हमारे यहाँ। ठीक है। और सर काफ़ी रुझान है जो युवा नौजवान हैं कारण पढ़ाई। कारण क्या है इसके पीछे? कितने बड़ी गिनती में आपके गांव से लोग सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं? कारण तो सर यही है, बस लोग रुझान है बच्चों का पढ़ाई की तरफ। कहीं भी आप चले जाओ, आसपास के जो भी स्टेशन है स्टडी के लिए, हरियाणा से खासतौर सारे स्टेशन हरियाणा के लगते हैं, तो हर एक जो भी मेडिकल कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें हर एक कॉलेज के अंदर हमारे गांव से लड़का लड़की आपको मिलेंगे। किस तरह का सहयोग रहता है फिर पंचायत का? पंचायत का भी सहयोग बहुत बढ़िया है, और जो ग्राम सुधार समिति बनी है गांव के अंदर उसका भी बहुत बढ़िया सहयोग है, और लोकल पंचायत आम जन का सहयोग बहुत बढ़िया है गाँव के लिए। कोई भी है, जो भी लड़का या लड़की किसी भी उसमें कोई इनाम वगैरह कोई ट्रॉफी वगैरह लेके आते हैं, हम बड़ा अच्छा उनका स्वागत करते हैं गांव में आने। वोट कितनी है गांव की? वोट है सर 2200। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ। ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗਲਾੜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਚਅਪ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਉਰੇ ਹੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਲਗਾਇਆ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਗਭਗ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मेरा नाम परमेश्वरी रानी है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ईटीटी टीचर हूँ, मेरी पोस्टिंग है जीपीएस ठसका और मैं सबसे पहली महिला हूँ इस गांव की जो सरकारी जॉब में आई हूँ। उसको मेरे से ही बहुत सारी बहुओं ने प्रेरणा ली और वो सरकारी जॉब में अब को कुल मिलाकर 26 से 30
औरतें सरकारी जॉब में हैं। आपके गांव में ज़्यादातर लड़के और लड़कियां सरकारी नौकरी करते हैं, क्या कारण मानते हैं कि आपके गांव में ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ जी, वो बहुत मेहनत करते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं, एक दूसरे की प्रेरणा लेकर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। गांव काफ़ी कटा हुआ, जैसे हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर है, कोई अच्छी सुविधा नहीं है। इसके चलते किस तरह संभव हो पाता है कि इतने लड़के लड़कियां जो हैं जो सरकारी टेस्ट पास कर लेते हैं? वो बाहर आजकल ऐसे मतलब माता पिता वो उनको बच्चों को प्रेरणा लेकर के बाहर भेजते हैं, कोचिंग लेते हैं बच्चे और अपनी मेहनत करके वो आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी लाइब्रेरी के गांव में जो लाइब्रेरी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लाइब्रेरी भी एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी सिस्टम बनाया ग्राम सुधार समिति ने। वो बच्चे पहले लड़कियों को टाइम दे रखा है, वो 8 से 2 बजे तक लड़कियां पढ़ाई करती हैं वहाँ, और उसके बाद लड़के आते हैं, वो शाम तक पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में। अच्छी अच्छी बुक्स ला रखी है लाइब्रेरी में, ये बहुत बड़ा सहयोग है बच्चों के लिए। आप एक कारण ये मानते हैं कि जो लाइब्रेरी खुली है उसके बाद जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, बच्चों में इंटरेस्ट कुछ और बढ़ा है? हाँ जी, बहुत बड़ा है जी। तो एक ये बड़ी चीज़ है कि हमारे समाज में ना, जैसे माना जाता है कि औरतें घर से कम निकलती हैं, पढ़ाई के कम मौके मिलते हैं। हाँ जी। तो आपके गांव में ऐसी किस तरह औरतें बाहर निकली, किस तरह उनको प्रेरणा मिली? सबसे पहले मैं इस गांव में मैंने +2 पास आई थी। मेरे हस्बैंड और मेरे परिवार की प्रेरणा से मैं आगे बढ़ी। मेरे को सरकारी 2006 में सरकारी जॉब मिली। उसके बाद तो जो भी मतलब गांव की बहुएं +2 पास थी, वो जाकर वो सभी ने ईटीटी की वो कोर्स किया, और वो सभी की सभी मतलब कि एक बार 40 कैंडिडेट इस गांव के लगे। अब भी जो मतलब बच्चे लगे हैं, अब भी इस वैकेंसी, हर एक वैकेंसी में बच्चे लगते ही रहे, और अब भी कम से कम 26 कैंडिडेट इस ईटीटी टीचर लगे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? बच्चे मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, एक दूसरे से सीख रहे हैं। आगे वो बच्चा आगे चला गया, मैं भी जाऊं, बाहर निकल रहे हैं बच्चे, कोचिंग ले रहे हैं। और लड़कियां भी मतलब कि पहले तो ऐसे होता था कि माँ बाप अपनी लड़कियों को देख बाहर भेजते हुए बहुत डरती थी। अब नहीं है, हमारे गांव में अब ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़के और लड़कियां बराबर ही है। लड़कियों को भी भेज रहे हैं बाहर और लड़कों को भी भेज रहे हैं बाहर, कोचिंग लेके आती हैं और अपने जो भी टेस्ट क्लियर करती है, मेहनत कर। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आगे? मेरे बच्चे भी, मेरी लड़की PhD कर रही है इंदौर, और मेरा बेटा भी ईटीटी में सिलेक्शन होने वाली, बस लिस्ट होने वाली है। वैसे तो इसके पीछे अनेकों कारण हैं। पिछले इंटरव्यू में भी मास्टर तरसेम जी ने और अभी हमारे शर्मा जी ने, नंबरदार जी ने आपको बातें बताई हैं। शुरुआत में अब तो लोगों में कंपटीशन की भावना पैदा होगी, बच्चों में हर घर में जागरूकता आ गई। लेकिन अगर हम बहुत साल पहले नज़र दौड़ाएं, शुरू में इसके पीछे हमारे पड़ोस में कन्या गुरुकुल खरड़ है हरियाणा में, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो गुरुकुलों का बहुत बड़ा योगदान रहा शुरू में लड़कियों की शिक्षा को जागृत करने के लिए। लड़कियों को लोग बाहर भेजकर खुश नहीं होते थे, और गांव की चारद्वारी से या गांव के इलाके से बाहर भेजना थोड़ा सा वो मानते थे लोग। तो गुरुकुलों में, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो लड़कियों की थी खासकर, उसमें शुरू में तो गुरुकुलों का बहुत बड़ा योगदान था। समिति तो चलो अभी 5 साल से बनी है हमारी, लेकिन इससे पहले भी फिर एक घर में जब किसी बच्चे को सफलता मिल जाती है या कुछ घरों में सफलता मिल जाती है, आस पड़ोस के घरों में या उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनको भावना पैदा होती है। ये नहीं हम अकेला गुरुकुलों का योगदान है, ये नहीं कह सकते हम। योगदान तो बच्चे का भी होता है, घर का वातावरण, घर का माहौल, और गाँव में माहौल कैसा है, गांव के जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, चाहे वो पंचायत के हों, समिति के हों, लोकल पंचायत हो, वो बच्चों के लिए कितना प्रयास करते हैं, ये सभी बातें उसमें मायने रखती हैं। तो इसमें सारे गांव के लोग पॉजिटिव हैं इसके प्रति। और जब समिति का गठन हुआ उसके बाद तो ये थोड़ी सी लहर शिक्षा के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब बच्चे कंपटीशन में सफल होते हैं, टीचर लगते हैं, कोई मिलिट्री में जाता है, किसी और अन्य विभाग में जाता है, तो उन बच्चों में होड़ लगी रहती है। और सुबह आप 4 बजे भी उठ के देखोगे, गांव में आओगे कभी, तो आप शाम को और सुबह हर गांव के जितने भी रास्ते हैं वहाँ लड़के और लड़कियां आपको दौड़ लगाते हुए मिलेंगे। उनमें खुद ही भावना पैदा होगी अब। और ग्राम सुधार समिति ने भी इनको वातावरण उपलब्ध करवाया जिसमें सारे गांव का योगदान है
बच्चों ने कोचिंग क्लासें ली, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं। पहले बाहर जाना पड़ता था बच्चों को, टोहाना जाना पड़ता था, दमथान साहिब जाना पड़ता था। अब वही वातावरण बच्चों को गांव में उपलब्ध है, जिससे बच्चे के मन में एक जागृति पैदा हो गई, प्रेरणा मिल गई। अब उनको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर घर में लोग जागरूक हो गए हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है। और समिति की आगामी जो कार्य योजना है, हमारी लाइब्रेरी अभी हमारे पास छोटे रूप में है, वहाँ सीटिंग कम है। अब बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाने की हमारी कार्य योजना है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक कार्यक्रम किया था सालाना, जो हम फंक्शन करते हैं 19 तारीख को। डीसी साहब को उसमें आना था, लेकिन डीसी साहब व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। अपनी जगह उन्होंने नितेश जैन थे, जो IAS ट्रेनी है संगरूर, उनको भेजा था अपने प्रतिनिधि के तौर पर। और वो इस कार्यक्रम से, स्कूल में ये कार्यक्रम था, वो बहुत खुश होकर के गए हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया था हमारे को कि मैं डीसी साहब को ये सारी बातें बताऊंगा और जितनी भी आपकी मुख्य मांगे हैं वो सारी पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। तो ग्राम सुधार समिति अकेली शिक्षा इनके प्रति नहीं, जो गांव की मुख्य समस्याएं हैं और भी, जैसे हमारे गांव में वाटर वर्क्स का ट्यूबवेल का पानी खराब था, उसके लिए पिछले जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे संगरूर के श्री रामवीर जी, चुनाव से पहले ग्राम सुधार समिति के प्रयासों से हमें 16 लाख की राशि उसके लिए प्राप्त हुई। अभी वो ट्यूबवेल नहीं लग पाया टेक्निकल कारणों से, अब अंतिम चरण में है वो प्रक्रिया, और 2-3 महीने में हमें पूरी संभावना है कि वो नया ट्यूबवेल लग जाएगा। उसके लिए 16 लाख की राशि हमारे तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर श्री रामवीर जी ने समिति के प्रयासों से उपलब्ध करवाई। दूसरा, ये स्कूल में जो आप खड़े हो, सारा इंटरलॉक से पक्का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ 10 लाख की राशि डीसी साहब ने हमारे को दी समिति को। बिल्कुल कच्चा था, यहाँ कोई एक भी ईंट, सारी मेन गली और सब कच्चा था। ये कमरे जो थे बिल्कुल नीचे से पानी खड़ा होता था, तो इनका भी फर्श उखाड़ करके दोबारा लगाया, बरामदे का, कमरे का, और सारा स्कूल अभी देखोगे आप घूम करके, इंटरलॉक से बढ़िया स्कूल पक्का है। 10 लाख रुपये की राशि इसके लिए हमारे तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर महोदय ने उपलब्ध करवाई। दूसरा, जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के लिए बहुत ही बहुमूल्य पुस्तकें डीसी साहब ने दी, और लाइब्रेरी में वो बच्चे लेते हैं, उनसे लाभ उठाते हैं। और भी उन्होंने आश्वासन हमारे को दिया था कि जो भी मदद की आवश्यकता होगी आपको, वो जज्जर कहते हैं हरियाणा के, थोड़ा सा हमारे गांव की विशेष ध्यान रखते थे इधर के इलाके का, क्योंकि हरियाणवी कल्चर है यहाँ। तो उनका मन बड़ा, शुरू में जब आए हमने उनको निमंत्रण दिया, वो कहने लगे कि मैं 1 घंटे का टाइम ही निकाल पाऊँगा। लेकिन जब इस कार्यक्रम में बैठे और हमने कहा कि डीसी साहब को जाना है, प्रोग्राम जल्दी समापन करते हैं, तो उन्होंने, इनको इतना आनंद आया, वो मंच पर बैठे बैठे बोले कि मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, अभी कोई बात नहीं, लंबा चलाओ इसको। तो इतने प्रभावित हुए। अब नितेश जैन जी आए थे थोड़े दिन पहले, वो भी बड़ा फीडबैक बाद में लिया, बड़े खुश होकर के गए हैं, बोला इतना बढ़िया प्रोग्राम मैंने कभी भी नहीं देखा। तो इसमें सारे गांव के जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी बिरादरियों के, सबका योगदान रहता है। और भविष्य में भी हमारी बहुत बड़ी योजना है, अगर गांव का साथ रहा, प्रशासन का सहयोग मिलता रहा, तो हमारी स्टेडियम, जो हमारा करौदा वाले रास्ते पर स्टेडियम अधूरा पड़ा है, वो जब गांव गोद लिया गया था उस समय स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। फिर बाद में सरकार बदल गई, उसकी पूरी जो राशि मंजूर हुई थी, जो अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, वो नहीं आ पाई, वो अधूरा पड़ा है हमारे, क्योंकि बच्चे वहाँ तैयारी करते हैं। अब हमारी जो कार्य योजना है मुख्य, एक तो गांव में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, दूसरा एक नया लाइब्रेरी भवन बन जाए, तीसरी हमारी मेन वो थी, पुराना हमारा सरकारी स्कूल है वो बेकार पड़ा हुआ है, उसमें कोई बढ़िया सुंदर पार्क का निर्माण हो जाए, ये हमने मांग रखी थी, और उसमें लाइब्रेरी भवन बन जाए नया। एक गांव में साझा कोई, उसको अब मैरिज पैलेस कह लो, या ग्राम सभा भवन कह लो, या मनरेगा भवन, कुछ भी नाम दे सकते हो, जिससे गांव के लोग शादियां करते हैं, जगह की कमी होती है, तो वहाँ वो भी हमारी एक कार्य योजना में शामिल है कि सारे गांव के लोग उससे लाभ उठा सकें। कोई बहुत बड़ा मनरेगा भवन के तौर पर या ग्राम सभा भवन के तौर पर उस भवन का निर्माण हो जाए, ये भी हमारी कार्य योजना में। मेरा नाम सानिया है और मैं BA फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी है BPSMV भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी, उसकी छात्रा हूँ मैं, और मेरे गांव का नाम गुलाडी है। ठीक है, तो आपके गांव में सबसे ज़्यादा टीचर हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि सर, जो गांव में जो शायद सबसे पहले सरकारी जॉब लगी थी, वो जो थे एक टीचर ही थे,
तो उनसे आगे आगे प्रेरणा लेकर टीचर आगे आगे टीचर बनते गए। तो फिर आगे उनसे और ज़्यादा, जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों ने शुरुआत में कुछ टीचर्स ने जेबीटी की, तो उसके साथ साथ और बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि जो टीचिंग होता है एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम जैसे लोगों से मिलते हैं, छोटे बच्चों से मिलते हैं, तो उससे मिलके हमें और ज़्यादा होता है कि हाँ हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम एक देश का एक भविष्य बना रहे हैं। तो इससे प्रेरित होकर आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है टीचिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बात करें गल करिए तो हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है ना। हाँ जी सर। तो इसमें आपके गांव में ऐसा क्या कारण है कि आपके गांव के सबसे ज़्यादा लोग जो अलग अलग विभागों में भर्ती होते हैं? तो फिर सर जैसे शुरुआत में एक दो जैसे जॉब में लगने हुए, टीचिंग की जॉब में जाना शुरू हुए, ऐसे आर्मी में भी बहुत सारे जो हैं हमारे गांव के लोग हैं जो आर्मी में भी हैं। तो फिर उनसे प्रेरित होकर आगे जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास हैं, कोई टीचर बना हुआ है, कोई आर्मी में है, तो उनसे ही आगे आगे प्रेरणा लेके क्या हो रहा है, जो सभी बच्चे भी आगे प्रेरित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि हमारे गांव में जो ये जो टीचर्स लगे हुए हैं या फिर जो आर्मी में हैं, वो इसके साथ साथ क्या करते हैं, गांव के लोगों को प्रेरित भी करते हैं, बच्चों को आगे आगे एनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएं। तो वो अपने आसपास के बच्चों को और गाँव के लोगों को भी एनकरेज करते हैं कि वो आगे अपना कुछ करियर ढूंढे, देश के लिए कुछ काम करें। आपने क्या सोचा आगे जाकर आप क्या बनना चाहेंगे? मैं एक सिविल सर्वेंट बनना चाहती हूँ। उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई है। जैसे हमारे गांव में जैसे जो ग्राम सुधार समिति बनी हुई है, उन्होंने एक कोचिंग स्टार्ट की थी जब मैं +1 क्लास में थी। तो वहाँ पे जो सर आते थे वो भी एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट थे, उनका मतलब वो इंटरव्यू स्टेज तक जा चुके थे। तो उनसे उससे पहले जैसे हमारा होता है, हम बच्चे होते हैं, कभी टीचर बनना है, कभी आर्मी में जाना है, कभी कुछ, तो उनसे मुझे वो प्रेरणा मिली कि हाँ कि जो फील्ड में चाहती हूँ वो मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि हाँ मुझे उसी फील्ड में जाना है। तो उसके बाद मेरा ये पक्का हो गया कि हाँ करना तो सिविल सर्वेंट ही है, बनना सिविल सर्वेंट ही है। तो गांव में लाइब्रेरी की शुरुआत कब हुई? गांव में लाइब्रेरी की शुरुआत जब लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के टाइम पे जब हम भी घर पे ही रहते थे शुरुआत में, तो तब हमें भी फील होता था कि हाँ जैसे एक पहले लाइब्रेरी थी लेकिन वो छोटी थी, मतलब इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी उसमें। तो फिर हम भी सोच रहे थे कि हाँ लाइब्रेरी बने, तभी पता चला कि हाँ लाइब्रेरी बन रही है गाँव में। तो जो गाँव के जो टीचर्स हैं, ये ग्राम सुधार समिति बनी हुई है, इन्होंने सबने मिलकर सोचा कि हाँ जैसे लॉकडाउन लगा हुआ तो गाँव के बच्चे भी घर पे बैठते हैं और घर पे तो सिर्फ घर का काम ही बनता है, तो वो बच्चे इतना अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने सोचा लाइब्रेरी बने। तो लॉकडाउन के टाइम पे लाइब्रेरी शुरू हो गई थी और लॉकडाउन के टाइम पे हम सभी बच्चे मास्क वगैरह लगा के लाइब्रेरी में आ जाते थे। क्या क्या सुविधाएं हैं इस लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में जैसे इसकी टाइमिंग है, ये तो गांव के बिल्कुल बीच में है, ये एरिया भी बिल्कुल ऐसे सेफ हो जाता है ना, जैसे गांव के बाहर नहीं है तो ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और उसके साथ साथ लाइब्रेरी मतलब बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, जो टीचर्स भी हैं डे टू डे वो यहाँ पे आते जाते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। उसके साथ साथ क्या करते हैं, हम एक ईयरली फंक्शन, जैसे जब ग्राम सुधार समिति बनी थी उसका हम एक ईयरली फंक्शन करवाते हैं जो ग्राम सुधार समिति वाले हैं। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे जो संगरूर है हमारा जिला है, उसका जो डीसी होता है वो हर बार जो भी डीसी होता है वो आते हैं। जैसे जो इसका लाइब्रेरी का उद्घाटन भी रामवीर सिंह जी डीसी थे, उन्होंने किया था। उसके बाद भी जैसे आगे से आगे आते रहते हैं, तो उनसे हमें और ज्यादा प्रेरणा मिलती है। गाँव में एक ऐसा फंक्शन होता है तो उससे गांव के मतलब सभी लोग मिलकर उसमें जाते हैं, हम भी पार्टिसिपेशन करते हैं, तो इससे गांव में एक अच्छा माहौल बन जाता है। तो किस तरह देखते हैं कि ये लाइब्रेरी है जो आपके फ्यूचर में किस तरह का जो रोल है वो निभा रही है? जैसे जब से लाइब्रेरी बनी है और बच्चे ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। पहले क्या होता था, हमें भी नहीं पता था कौन बच्चा क्या कर रहा है। अब सभी बच्चे जैसे घर से निकल के सुबह 8 बजे तक लाइब्रेरी आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे पूरा दिन पढ़ते हैं। तो फिर बच्चों को यहाँ पर जैसे घर हम अकेले रहते हैं, हमें इतना पता नहीं चल पाता, तो जैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं वो ज़्यादा इंकरेज होते हैं, अपने आसपास वालों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे टीचर्स हैं जो ग्राम सभा समिति के मेंबर हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, वो भी हमें साथ साथ गाइड करते रहते हैं, हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें एक टाइम मिल जाता है अच्छे से। जैसे हमारी जो यहाँ पे अभी 2 टाइमिंग हुई है लाइब्रेरी की, एक सुबह की टाइमिंग होती है जो लड़कियों के लिए और शाम की टाइमिंग है जो वो लड़कों के लिए है। तो यहाँ पर 2:30 बजे तक की जो टाइमिंग होती है हमारी, उसमें 8 से 2:30 तक लड़कियां जब अपना 6-7 घंटे हो गए आराम से बैठ के अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वो इस पिंड ने नवी मिसाल कायम की है।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।